What happens when a country of the size of India has over 3 million children living on the streets, or has over 150 million children working as bonded laborers, or 1 out of every 6 girl child does not live to see her 15th birthday? What happens when, despite having a national policy for compulsory primary education, only 50% of children have access to education? The statement, "children are the future of the nation," stops making sense then. In fact, it sounds like an ominous prophecy. So how can we explain that even after 60 years of independence, half of the India's children are illiterate? Or despite identifying primary education as a key thirst area and possessing one of the largest networks of the schools in the world? इस भागती दौड़ती जिंदगी में जहाँ थकना मना है, हम बस भागते जा रहे हैं। आंख बंद करके जिंदगी जहाँ ले जाए वहीं जा रहे हैं। बहुत कुछ पाने और बहुत कुछ कर गुजर जाने की इच्छा लिए शायद हमने अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को ताक पर रख दिया है। Literacy in India is the key for socio-economic progress, and the Indian literacy rate grew to 75.06% in 2011 from 12% at the end of the British rule in 1947. Although this was a greater than 6-fold improvement, the level is well below the world average literacy rate of 84%. And India currently has the largest illiterate population of any nation on earth. Despite government programs, India's literacy rate increased only sluggishly, and a 1990 study estimated that it would take until 2060 for India to achieve universal literacy rate at then current rate of progress. The 2011 census, however, indicated a 2001 to 2011 decadal literacy growth of 9.2%, which is the slower than the growth seen during the previous decade. इसी सिलसिले में हमने बात की कुछ चुनिंदा लोगों से इस विषय में, और जो हमें मिला वो जानकर लगा कि लोगों में भरोसा है कि हिंदुस्तान इस विषय में आगे बढ़ेगा, लेकिन कब और कहां तक? हमारे देश के सबसे मुख्य दुर्भाग्य तो ये रहा कि हमारे जितने उच्च पद हैं राजनेता, उन्होंने हमारे हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क किया। पहला। दूसरा, हमारी गरीबी। आरक्षण ने इतना ज़्यादा उल्टा सीधा कर दिया इस हिंदुस्तान में कि आज जो शिक्षित बच्चे, क्षमता वाले बच्चे, उनको तो नौकरी नहीं है, और आरक्षण कोटे का जो लाभ उठा रहे अदर जातियाँ, उनको कोई भी तजर्बा कम होने के बावजूद भी उनको आरक्षण का लाभ मिलता है और वो बहुत ज़्यादा खोज जाते हैं। इसलिए पढ़ाई में लोगों ने इंटरेस्ट इसलिए कम कर दिया कि यहाँ पे जातिवाद बहुत ज़्यादा। फिर भी इंसान इतना, तो मैं तो ये कहता हूँ, इतना पढ़ाना चाहिए कि वो इंसान की ज़िंदगी जी सके। अनपढ़ आदमी एक जानवर के बराबर है आज के। टीचर्स का इसलिए बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। एक लाख 7 बच्चे तो कैसे पढ़ेंगे? भारत गवर्नमेंट को सहायता दे रही है, बुक्स देती है, ड्रेसेस देती है, और स्कूल में अच्छी तरह से उसको वो नहीं कर पाते, उसको कार्यान्वित नहीं कर पाते, इसलिए वो I think that there are two states of education. One where those that can afford it send their children to school, and one where the children from the villages don't seem to get the same chances for education. And that makes me very sad, because I think that the only way that a country is going to truly develop and become great is if they educate all of the children, so that as they grow into adults, education will become the norm and the country will become better, stronger and more prosperous as a result. I think the first thing that Indians should do is insist that the government that they vote into power provides education for all of their people. I think if you could stop the corruption at the top and feed a lot of that money back down into the villages, you could educate all of the children very well. So we can say literacy is the mother of all issues, as it gives birth
too many other issues like poverty, unemployment, child labor, female ferticide, population burst, and many more. क्या इस बारे में कुछ किया नहीं जाना चाहिए? शिक्षा का अलग है, ग्रोथ रेट का अलग है। अगर तो शिक्षा की बात अगर करते हैं तो आज़ादी के पहले शिक्षा की बिल्कुल स्थिति कमज़ोर थी, पढ़ाई की व्यवस्था आमतौर पर नहीं थी। लेकिन आज़ादी के बाद कई प्रयोग हुए शिक्षा में, जिसमें सरकार ने स्कूलें खोली, लेकिन सरकार अपने आर्थिक क्षमता को देखते हुए काफ़ी कम स्कूल थे पहले, और उसके हिसाब से साक्षरता या शिक्षा का परसेंटेज कम बढ़ा। लेकिन इसके और भी कारण है। शिक्षा के प्रति रुचि भी अपने ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं थी। आप गांव में जाएंगे अगर देखेंगे, अब तो थोड़ी जागरूकता हुई है, लेकिन पहले कोई स्कूल भेजना नहीं चाहता था। स्कूल होने पर भी स्कूल नहीं जाते थे। इसमें केवल सरकार की गलती नहीं है, हमारे जो सामाजिक जो एक तरह से अंधविश्वास या जागरूकता की कमी है, उस कारण स्कूल नहीं जाते थे लोग, जिससे भी शिक्षा का प्रचार नहीं हुआ। इसके लिए सरकार के अलावा भी संस्थाओं ने काफ़ी काम किया है। विनोबा ज्ञान मंदिर एक जीवंत उदाहरण हो सकता है उन लोगों के लिए जो आज भी पत्थरों में नहीं बल्कि इंसान में भगवान ढूंढते हैं। ये जगह है विनोबा ज्ञान मंदिर, जहां पिछले 10 से 12 सालों से ये लोग लोगों में शिक्षा के प्रति जागरूकता फैला रहे हैं, और इसका नमूना हम देख सकते हैं। ये चारों लड़कियां भेड़ बकरियां चराती थीं और पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारियों के चलते इन्हें अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। लेकिन डॉक्टर अवध प्रसाद ने अपने अथक प्रयासों से इनका सपना पूरा किया। पहले हमारे पढ़ने नहीं देते हैं, गांव में जाने नहीं देते पढ़ने। ऐसे बोलते हैं कि लड़कियों को आगे पढ़ाना अच्छा नहीं है, पढ़ाने नहीं देते, वहाँ पर पढ़ने भी नहीं देते। हाँ, ये बोलते हैं आजकल का ज़माना नहीं है पढ़ने का वगैरह, ऐसे पढ़ने नहीं देते थे। फिर रोक दिया जाता है लड़कियों को। ये बोलते हैं कौन सी तीर मार लोगे आप लोग पढ़ के, घर का काम करना है वो तो चूल्हे का ऐसे भी कर लोगे। पढ़ने नहीं देते हमारे गांव में, ज़्यादातर लड़कियों को जाने भी नहीं देते घर से बाहर। कपड़े भी अगर पहनने हैं तो या तो साड़ी पहनो या घाघरा लुगड़ी, इसके अलावा नहीं पहनने देते कपड़े। कौन मना करता है? पहले मम्मी पापा? नहीं, हमारे दादा दादी ये सब मना करते हैं। फिर यहाँ पर आने के बाद में सब लोग अब खुशी खुशी जो हम कुछ कहते हैं ना वो सब करने के लिए थे। पहले हम अकेले भेजते नहीं थे, अब हम अकेले भी भेज देते हैं। अब जब गांव जाती हो तो वहाँ के लोग क्या बोलते हैं? यूँ बोलते हैं अच्छा है हमारी लड़कियाँ कुछ पढ़ लिख के बन जाएंगी। तो आपने उनको समझाया कि आप अपने भी बच्चों को आप इसी तरीके से पढ़ा? हाँ, पढ़ने जाती हमारे गांव की पूरी लड़कियाँ जाती हैं। यहाँ आने के बाद में तो सारी लड़कियाँ जाती हैं, एक भी लड़कियाँ नहीं रुकी, सब पढ़ने जाती हैं। सिलाई के लिए आई थी? सिलाई के लिए आई थी बहुत सारी लड़कियाँ हमारे गाँव से, सब पढ़ने जाती। पहले नहीं जाती थी, पर अम्मा जी के कहने के बाद सब लड़कियाँ पढ़ती। और अब आगे क्या करना है आपको? 10th का एग्जाम देना? 10th का एग्जाम देने के बाद हमें ये लगता है कि हमें और लड़कियों को भी जागरूक करना चाहिए पढ़ने के लिए। सबको पढ़ना चाहिए, पढ़ना सबका अधिकार है, बस यही है और कुछ नहीं। सब पढ़ने के लिए पढ़ना जरूरी है आजकल के ज़माने में हर चीज़ को। मैं सीता गैरवा, मैं इंदिरा कॉलोनी से रहने वाली हूँ और यहाँ पढ़ने के लिए आई हूँ और यहाँ से मेरा जीवन शुरू हुआ है। मैं यहाँ से 5 साल से आ रही हूँ, जब से 13 साल की थी जब से आ रही हूँ। लेकिन यहाँ से पढ़ने के बाद में ऐसा लग रहा है कि और पढ़ना चाहिए आगे, और आगे पढ़ के कुछ करना चाहिए। ज़िंदगी में पढ़ना ही सबसे अहमियत की बात होती है। लड़कियों को पढ़ना, और लड़कियाँ ही आज देश में आगे है सबसे। और मैं भी यही चाहूँगी कि लड़कियाँ सब पढ़ें, मेरी जैसे नहीं बैठे घर पे, बैठ के कुछ करें और कुछ अपना हुनर दिखाए देश में लड़कियाँ। जागृति संग बज
की क्या पहचान, पढ़ा लिखा मजदूर किसान। उम्मीद के बंद लिफाफे में एक टिमटिमाता सा सपना है, बादल की पिचकारी लेकर चांद सितारों को रंगना है, आसमान की इस किताब पर नाम बस अपना लिखना है। Not only the government, but every literate citizen should contribute in battling with the demon of literacy. Our motto should be each one, teach one. If we are to become a developed nation, one of the initiatives is Teach India, whose aim is to provide a platform to educated Indians to provide assistance in basic education to unprivileged children. Teach India will connect educated individuals with the specialist education providers. It's now turn of the youth to step up and take the responsibility on their shoulders to take this nation towards the light of literacy. In the world of the new President of United States, Barack Obama, change will not come if we wait for some other person or some other time. We are the ones who have been waiting for. We are the change that we seek. The time for the change is now. India is developing, but at a very slow rate. This is not the fault of a corrupt government. It is due to this problem of illiteracy only. Literacy enables a person to think rationally, to be understanding, to be more responsible, and to make his or her own decisions. A literate person is aware of all his fundamental rights and duties. Literacy is the ultimate solution to fight problems like communalism, terrorism, and underdevelopment. Our government is of the people, for the people, and by the people. But what is the use if people even cannot make the right decision? So, our documentary is about the most rampant yet easily accepted issue of our times, and this is low literacy rates and lack of education among children in rural areas of Rajasthan. We have covered Jaipur district concerning their literacy rates and education problems. गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। बहुत अच्छा लगता है कि मैं RIT का पार्ट हूँ। 4 सालों में मैंने बहुत कुछ सीखा इस कॉलेज से। बेसिकली मैं बोलना चाहूँ मैनेजमेंट काफ़ी अच्छी मैनेजमेंट है और हर चीज़ पे इंस्पिरेशन हमें देती है, हर चीज़ को मोटिवेट करती है और हर कदम पर हमारा साथ देती है। और So, our documentary is about the most rampant yet easily accepted issue of our times, and this is low literacy rates and lack of education among children in rural areas of Rajasthan. We have covered Jaipur district concerning their literacy rates and education problems on the behalf of Rajasthan Institute of Engineering and Technology Jaipur. अकेले ही चले थे राह गुजर में, चलते गए और कारवां बनता गया। यही है वो कॉलेज जहां से इस पाक कार्य की शुरुआत हुई। इसके दिए हौसलों से हम इस फिल्म के जरिए कुछ हद तक लोगों में जागरूकता फैलाने में कामयाब रहे हैं। इस संस्था से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से जुड़ा हूँ। हमारे सारे स्टूडेंट्स होनहार है, जिसमें से
विनय यादव इसरो में साइंटिस्ट, बनवारी लाल DRDO साइंटिस्ट एंड नेहा सटार जो कि नासा में है। चंद्रावती एजुकेशन सोसाइटी को धन्यवाद इस तरह की पहल के लिए जो ये इंतजार गंभीर मुद्दे को लेकर लोगों में जागरूकता ला रहे हैं।